I'm Sumit Bahadur, and by profession I'm a computer engineer. I दिल्ली में मेरी पैदाइश थी, उसके बाद मैं स्कूल गया दिल्ली में, और उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, और वहाँ से बीटेक करने के बाद देन आई गॉट अ स्कॉलरशिप, मैं US गया, वहाँ से मास्टर्स करी कंप्यूटर साइंस में, और वहाँ मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई, तानिया से. You can give your background. I have Masters of Electrical Engineering from Ukraine, and then I got scholarship. I went to US and I did my Masters in Computer Science. We studied together with Sumit. We studied together. This is how we met. उसके बाद I think both of us we really got to know each other जब हम लोग summer job कर रहे थे, internship कर रहे थे Hewlett Packard में, जो वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है US में. उसके बाद तानिया got a job as a systems engineer in a company called Advanced Control Technology, और मैं US की बहुत बड़ी एक supply chain management consulting firm है, वहाँ पर I was employed. तो ये हम लोगों की background है. And जो when we started the business, Amway business, उस वक्त initially हम लोगों का focus यही था कि ठीक है, we want to earn some extra money, improve our health, make friends, improve our lifestyle. But as we started going into meetings and meeting a lot of successful people, तुमको ऐसा लगा कि इस business में there's a lot to offer, it's a complete package. और ये business जो है it is very unique in terms of these things कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है. आपको अच्छी health मिलती है, you earn a lot of money, wealth, health, fame, a lot of people know you, बहुत सारे friends बनते हैं. In fact, I think this is the largest friendship network in the world. And what else? I mean, yes, basically it's like a full package. Yeah, it's like a full package. But at the beginning, when you look at the business, you don't see all these things. Yeah. When you go to the seminar functions and slowly, step by step, you start realizing and understanding what this business can really offer. The values you learn in this business, those are the values जो हमारे grandfather के time पे हमको सिखाया जाता था, जिसको we kind of forget. Those values are very, very important, how to be an ideal husband, how to be an ideal wife, how to be having good relationship with each other, with your children, within your family. So those are things just where you can't even put a price tag. So this business is very unique in terms of all of these things. I think that there is a whole Amway way of life, which people don't realize. लेकिन आगे चल के you fall in love with that way of life, and everything else becomes secondary. पैसा तो आता ही आता है, but बाकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा important हो जाती है time to time, It's like everything starts, when you look at something, you look, and usually people look at because of their pocket. And then they go and see, they realize that there is logic behind this, and there is research, there is something great, and then slowly when they start creating organization, they fall in love with people, and that the people heart got close to their heart. And when your heart rules, then there is so much more you can do, can achieve, and then it's up to you what you want to you can take it as big as you want. In terms of diamond ship was always there in the mind. हम लोगों को शुरू से जब से हम लोगों ने होस्ट संभाला है इस बिजनेस में, तब से हमारे दिमाग में डायमंड डाल दिया गया था कि डायमंड जाना है. इनको पता था कि डायमंड लाइफस्टाइल इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. और डायमंड जाने के बाद जो चेंजेस लाइफ में आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि मतलब आप एक तो अपनी ट्रेडिशनल प्रोफेशन से, बिजनेस से, आपका जो भी रूटीन जॉब है, बिजनेस को भी जॉब ही बोलूँगा, उससे आप बहुत हद तक फ्री हो जाते हैं. डिपेंड्स करता है कि आपका पहले वाला इनकम कितना है. बट डायमंड आते आते यू कैन मेक दिस एज योर होल सोल बिजनेस इफ दैट्स व्हाट यू चूज टू डू. तो आदमी जो है बाकी सब झंझटों से एकदम रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाता है. यू डोंट हैव अ बॉस, बॉस की खिटपिट नहीं सुननी पड़ती है. ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों के साथ जो भी डीलिंग होता है, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, उधारी, ये वो, लेबर का प्रॉब्लम, वो सब नहीं रहता. तो यू आर बेसिकली लाइक अ फ्री पर्सन. you are living in an atmosphere which is very positive. यहाँ पर डायमंड जाने के बाद एक तो आदमी उन सब चीज़ों से फ्री हो जाता है. You are basically doing this business full time.
डायमंड जाने के बाद एक जो बहुत बड़ा अचीवमेंट वो नोटिस देखते हैं वो ये है कि मतलब आपका जो इन्फ्लुएंस है लोगों पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. People start looking at you in a different way. You know, when you go ahead, you are being invited to do a lot of seminars, you know, a lot of people within your organization and outside of your organization, Brit Worldwide में वो आपको बुलाते हैं, you know, to conduct a lot of attitude sessions, this, that. So suddenly you start finding कि मतलब आप जो भी बताते हैं लोगों को तो people are hanging on to every word that you say. And that influence is very, very interesting, you know, because उसमें you find you have a lot of capacity to change people's lives for the better. Also, money is a very, very big improvement. After you become diamond, the kind of, you know, branded clothes that you can buy, the kind of places you start getting, you know, invited to. आपके जो forums होते हैं, Amway के award trips होते हैं, they're in bigger, swankier, more fancier places. वो सब चीज़ें ट्रैवल बढ़ जाता है. I think overall, I mean, life it just changes for the better, you know. That's what I'll say. I think it's also affect your self-image, and it's like, you know, not what you achieve by through becoming a diamond. It's who you become. Yeah, very true. Through the process of working with people, be so patient, you know, tolerant. Listen to all the questions, and you know, even you heard them so many times, again you patiently listen to all of them and you just give them attention and love and unconditional love, and extend your friendship beyond whatever you ever thought of. And the way you train yourself, the way you become in the process, that is you cannot put the price in it. Yeah, very true, very true. It's like, you know, you feel like you are working on a different level now, you know, very true. See, we didn't develop any specific game plan for diamondship. It was just a matter of, you know, counting up to 6. हम लोग जब डायमंड क्वालिफिकेशन के बारे में सोच रहे थे, we were already strong emeralds. So we had to work on a couple of side legs, but the whole game plan was to identify the legs that we are working with, to identify the people who have made a decision कि हमको platinum जाना है इस साल. To in every leg, you know, we were looking for some leaders who are ready to move on, और उनकी टाइमिंग हमारी टाइमिंग के साथ मैच कर रही है. उन लेग्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद, it was just कि, you know, work and get the job done, you know. And another thing I would just add that, you know, like if when you decided to go diamond, for example, you have to think about this already, should be in your mind 1 year in advance. Yes. 1 year in advance you have to prepare the foundation. Base. Yes. Because whoever expect you think they will do really well, it's not really happening like that. One spare leg always अपने पास रख के चले आप लोग. अगर आपको किसी फिजिकल ईयर में सितंबर टू अगस्त का फिजिकल ईयर है, उसमें इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर डायमंडशिप एंड फिनिश इट ऑफ, देन उस सितंबर से पहले एटलीस्ट मार्च, मैं तो कहता हूँ जनवरी बिफोर द सितंबर इज दैट व्हेन यूर उस टाइम से प्लानिंग चालू करनी चाहिए. तो अगर मान लीजिए हम लोगों का सितंबर 2009 टू अगस्त 2010 में डायमंड जाने का प्लान है, तो उसकी प्लानिंग आइडियली जनवरी ऑफ 2009 से शुरू हो जानी चाहिए. उससे पहले हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तब तक, लेकिन बाय जनवरी इफ़ यू डोंट हैव थिंग्स इन प्लेस तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. हमारे हिसाब से अगर आपके पास नंबर सॉलिड हैं अपनी सारी लेग्स में, जो लेग्स आपको क्वालिफाई करवानी है प्लैटिनमशिप के लिए, और उन लेग्स में जो लीडर्स हैं आइडेंटिफाइड हैं, तो बहुत अच्छी बात है. हम पर्सनली ये देखते हैं कि जिन लेग्स को आपको प्लैटिनम लेके जाना है अपने डायमंड क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए, उस हर लेग में कम से कम 5 ऐसे कपल्स होने चाहिए विद whom यू हैव अ वेरी टाइट फ्रेंडशिप, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है. उन 5 कपल्स के साथ घर में कोई फैमिली चैलेंज, मतलब कोई हस्बैंड वाइफ चैलेंज नहीं है, कोई मनी चैलेंज ऐसा सच नहीं है कि विच विल प्रिवेंट देम टू मूव ऑन. कभी कभी क्या होता है कि लोग जो हैं बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड डजंट होल्ड अ स्टडी जॉब,
या हस्बैंड और वाइफ के ऐसे कोई लोन सर पे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर उस तरह का मतलब चैलेंज घर पे नहीं है, दे आर क्वाइट फाइनेंशियली स्टेबल, आई वुड से नॉट वेल ऑफ बट स्टेबल, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आइडेंटिफाई पीपल लाइक दैट। साथ साथ अपने उन 5 फ्रेंड्स को जिनको आपको ढूंढना है अपनी एक लेग में, वो 5 के 5 लोग जो है ना, दे शुड बी लिसनिंग टू सीडीज, दे शुड बी इनटू द सिस्टम, एंड ऑल्सो वो आपके सबमिशन में होनी चाहिए। अगर आपके ऐसे लेग्स में अगर आप ऐसे लेग्स को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिस लेग में सारे के सारे लोग जो हैं वो इतने हाई फाई हैं कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर वो आपके साथ वन अपमैनशिप में लग रहे हैं, थोड़ा बहुत कंपटीशन टाइप की फीलिंग आ जाती है उसमें, तो क्या होगा कि आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपकी प्लानिंग और उनकी प्लानिंग मैच नहीं करेगी, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो आई वुड से फोकस ऑन डेवलपिंग 5 गुड फ्रेंड्स इन ईच लेग, और उन लोगों के साथ आपका ट्यूनिंग अच्छा होना चाहिए, दे शुड बी इन सबमिशन टू यूर सिस्टम वगैरह आपने उनको प्रमोट करके रखा है। फिर ऐसे 5 कपल्स के साथ आगे बढ़ने में आपका वो लेग जो है काफ़ी सिक्योर रहता है। And in our case, when we started focusing 1 year in advance on the business, to focus, we decided, this year we want to go diamond. And when we start focusing on the people, I wanted to make sure as a lady that all the ladies in my group attend the product training. They know your product, because if they don't know the product, how the volume will be created. Correct. Guys are responsible of bringing the people, showing the marketing plan. Correct. But if the lady don't know the product, so the guys bring the people, the family, but zero volume. But for qualifying leg, you need the volume. And you cannot just push the volume. It has to be created by itself. Yes. That's why people have to be really nicely educated about the products. And then you look on the which is PV, creating items like Nutrilite and Artistry. And health and beauty, that's the most important thing for the people at the beginning. लेडीज़ को ब्यूटी ब्रेक्स वगैरह करनी पड़ती हैं। यू हैव टू डू हेल्थ प्रेजेंटेशंस, जहाँ पर भी मतलब पीवी क्रिएट करने का काम है वहाँ लेडीज़ ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो उन लोगों की लेडीज़ की आपस में दे शुड हैव अ गुड फ्रेंडशिप गोइंग इन द टीम ऑल्सो। Yes, and product training is very important, and then as a couple you have to bring all the people to the seminar and function that both as husband and wife should be excited. Yeah, as much as possible bring both husband and wife together. वरना क्या होगा कि अगर सिर्फ लेडीज़ काम करते रहेंगे तो जेंट्स थोड़ा सा लेट बैक हो जाते हैं कि ठीक है यार वाइफ्स काम कर रही हैं इतना कुछ, और वाइफ्स लेडीज़ का ही बिजनेस है, हम लोग तो वैसे भी क्या करेंगे। तो उसमें क्या है ना कि आप एज अ कपल जितना इन्वॉल्व रहेंगे और अपने टीम में कपल्स को इन्वॉल्व करके रखेंगे उतना जो है कपल सामने आएंगे। ऑफ कोर्स कपल में से हमेशा एक आदमी ज़्यादा एक्टिव होगा, एंड आई एम होपिंग कि लेडीज़ आर मोर एक्टिव बिकॉज वहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा आता है, लेकिन एटलीस्ट both the people should be together, seen together as much as possible. Because that, the couple excited brings stability to the family and the stability to the leg and stability to the volume. लोगों को लगना चाहिए कि family business है. It is not like one of those other flame type of businesses, And when you have stability, then you actually can count every month how much PV will be coming. It will be guaranteed. Yeah. If there is no stability, then you're wondering what will this person will do, what that person will do. Here it becomes predictable. In our case, when we start working on our legs, which we wanted to qualify for the, diamondship, we 1 year in advance, where we train the people to train the people how to run the business, how to deal with families. Yes. As a result, we not only qualified, as a diamond, but we also qualified as a founder diamond on the same year. Yeah. That is very important. If we did not have that preparation, we would probably qualify only as a diamond. But because working on stability of the people of the family, we actually stabilized our leg to that extent that it was no kind of like going volume up and down, up and down. It was steady, was going up. We drove the leg very deep. हम लोगों ने लेग में डेप्थ बहुत ज़्यादा बिल्ड करी
और ये जो 5-6 फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आपको अच्छे क्वालिटी लोग मिलेंगे जहाँ पर आप उनकी फैमिली के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, यू नो, और जितना ज़्यादा वो फैमिली जो है आपकी, मतलब हाउ शुड आई पुट इट, दे आर लिसनिंग टू यू एंड दे आर टीचेबल, उतना ज़्यादा क्या होगा कि आप एक फैमिली को ट्रेन कर पाएंगे। बिकॉज आई हैव सीन वेरी 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 मच दैट यू नो, फैमिली में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जो होते हैं प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। अ फैमिली विच हैज़ हेल्दी किड्स, यू कैन इमेजिन यू नो हाउ मच ऑफ PV दैट फैमिली कैन जनरेट, बिकॉज उनके बच्चे जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू स्ट्राइक अ फ्रेंडशिप विद द फैमिली एंड ट्राई टू टेक इट डीप so that you can stabilize that leg so that the volume doesn't fluctuate and go yo-yo, you know. And when you take it deep, you have to teach people in between. That is the role of the system comes. The tapes and books and function. Because everywhere you cannot be. आप जो है लेग को ड्राइव करेंगे डेप्थ में तो आप तो लेग की ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लोग बीच में हैं उनको ग्रोइंग अप जिसको हम कहते हैं वो उनकी होनी बहुत ज़रूरी है। उनका ग्रोइंग अप जो होता है उसके लिए उनको आपको बीच बीच में जितने भी लोग हैं उनको CDs देनी पड़ती हैं, आपको उनको जहाँ पर जिनके पास CD, आजकल तो सबके पास CD प्लेयर है, बट इफ पीपल डोंट हैव CD प्लेयर एटलीस्ट यू नो यू गिव देम अ टेप इन द कार, उनको जितने भी वीडियो CDs हैं वो देने हैं। मेक श्योर दैट आप जगह जगह जाके SOCD प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हैं। फंक्शन की टिकट्स जो है आपके पास होनी चाहिए, आप लोगों के घरों में जाके प्रमोट करते हैं। ग्रोइंग लेग में तो यहाँ तक लोगों को ट्रेन करना पड़ता है कि अपनी गाड़ियों में भर भर के लोगों को लेके आए ताकि लोग जो हैं वो सेमिनार्स में आ सकें, वरना कभी कभी दूर दूर सेमिनार्स होते हैं, सबके सब लोगों के पास कन्वेंस नहीं होती है और दे नॉट कंफर्टेबल कमिंग ऑन द, मतलब वॉट एवर इट टेक्स यू हैव टू एजुकेट द पीपल, वॉट एवर इट टेक्स यू हैव टू प्रोवाइड द टूल्स, यू हैव टू प्रोवाइड द टिकट्स। आई नो कि कभी कभी शुरू में आपके जब लेग्स ग्रो कर रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ टिकट्स हाथ में बच भी जाते हैं मंथ के एंड में, बट डजेंट मैटर, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यू नो। कभी कभी CDs घूम भी जाते हैं, डजेंट मैटर, ये सब तो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। लेकिन उस लेग में वॉट एवर इट टेक्स, लोग स्पॉन्सर तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ उनको सिस्टम में डालना धीमे धीमे बहुत बहुत ज़रूरी है। लोगों के चेक्स आते हैं उनके पास, दे गेट एक्साइटेड, आपको उनको बताना है उस वक्त बैठ के कि देखिए आपका चेक आया है इतने का, इसको बड़ा करने के लिए फिर धीमे धीमे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाइए, यू नो, टॉक अबाउट द ईगल स्ट्रक्चर। उस वक्त शुरू में जब लोग नए नए आते हैं तो इतना कुछ लंबा सोच के शायद लोग नहीं आते हैं, दे जस्ट वांट टू कम इन फॉर यूजिंग द प्रोडक्ट्स एंड यू नो मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा मनी, बट वंस द चेक स्टार्ट कमिंग एट 6% 9%, उनको एजुकेट करना स्ट्रक्चर के बारे में और सिस्टम के बारे में बहुत ज़रूरी है। And one thing, like when you're teaching leaders in your group to create 10,000 points, it's this business everything by example. Yeah. So you have to, like for example, we work on this leg and we try to create 10,000 points there. We should be having our personal volume 10,000 points. Very and true. our working style should be exactly the same, like we're going silver on the side. Like whenever somebody called us, we're always on some meeting. So if they call us, we're all the time busy and doing some meetings. They also think, yes, we have to be also occupied. Yeah, मतलब when you are going diamond, the normal thing is to have about 2 to 3 meetings a day. I mean, this is normal. So कम से कम बता रहा हूँ आपको मैं, मतलब उसमें अगर आप और आपके मिसेज जो हैं अलग अलग, they can do double duty. If she has her own meetings, you have your own meetings. If sometime it's even better, but there should be at least 2 to 3 meetings that you have to do per day. I feel that way, बहुत सी मीटिंग्स ऐसी होती है जहाँ पर लेडीज़ ज़्यादा होती है तो वहाँ मैं बैठा रहता हूँ जस्ट प्रेजेंस, बट तान्या डज मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। बहुत सी मीटिंग्स ऐसे होती है जहाँ पर जेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर आई डू मोर ऑफ टॉकिंग एंड तान्या जस्ट डज अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट डेमो। Also every meeting, whatever we do, we always do product demos, that's very very important. हमारा कोई भी प्लान, कोई भी मीटिंग ऐसा नहीं आता जिसमें हम लोग प्रोडक्ट डेमोज नहीं करते हैं, especially showing the plan. पेस मीटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर पेस मीटिंग्स इन दोज लेग्स जिनको आपको प्लेटिनम क्वालिफाई करवाना है इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेस मीटिंग्स जो हैं दे शुड बी दे आर मोर ऑफ अ फंक्शन ऑफ हाउ मनी न्यू पीपल आर कमिंग इन द लेग। अगर आपकी एक लेग में बहुत सारे नए नंबर्स आ रहे हैं तो मे बी यू माइट रिक्वायर टू डू 2 times a month pace meeting.
or maybe 3 times or 4 times, you know. But sometimes, you know, we are able to just manage with the fewer pace meetings because at least हमारे case में we were able to combine a lot of people in one pace meeting. So our pace meetings were having larger numbers, you know. Nothing, when you really start growing your momentum catch up, it's very important your time management. Because if you, whatever you can do tomorrow, try to see if you can do it today. Don't delay it for tomorrow because you don't know what will happen tomorrow. Because tomorrow always unpredictable. So whatever you try to do, make a schedule and keep it everything very simple and very organized. And as much as possible, try to fit everything in today. Don't delay for tomorrow and teach the same thing all your downlines. In this case, you can push actually lots of events, you know, 1 or 2 months in advance. You know, qualifying silver instead of months later, with people can qualify 1 month earlier. So different percentages of the people, if there's a little bit of stretching, little bit doing in advance, they can create much more things. I mean, all these things are very, very basic. You all have to be in tight communication with your, you know, upline diamond, जिनके साथ भी आप counseling करते हैं, so that they can guide you. You have to be very closely in touch with all of your downline leaders who are part of your diamond campaign. अगर आपके diamond campaign में आपकी कुछ legs ऐसी हैं which are absolutely like strong, secure, आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी वहाँ पर 10,000 points होने वाला है, तो उस legs में you can take a little bit of a back seat, you know. वहाँ पर आप लोगों को समझा सकते हो कि देखो इस next 1 year में, you know, I'm shooting for diamondship, so I'll be focusing a little bit more on my other growing legs, you know. I mean, leaders जो है खास वहाँ के, उनको आप थोड़ा सा समझा सकते हो because you'll probably be, you know, putting more of an effort in other legs जिनको आप qualify करवाना चाहते हैं. So in those legs which you want to qualify, you will have to be more closely in touch with people. You will have to create some sort of a fun, you know, activities over there. You know, once in a while you might take the people over there and have some kind of an outing with the leaders. Sometimes you can go out for a cup of coffee. Sometimes you can celebrate the achievements with them by going out and having some kind of a lunch or dinner with them. Always doing some sort of a team building activity in that leg so that you're more involved. That's very, very important. हमारे डायमंड कैंपेन में हम लोग एक काम करते थे कि जो भी कॉरपोरेशन के प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग होते थे, जहाँ पर आपके ग्रोइंग ग्रुप्स हैं, वहाँ पर उन प्रोडक्ट ट्रेनिंग को हम हमेशा पूरा उनका फ़ायदा उठाते थे. एंड वी यूज्ड टू मेक श्योर कि उन प्रोडक्ट ट्रेनिंग से पहले जितने भी लीडर्स हैं अपने नए नए लोगों को इकट्ठा करके वहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो जो रिसोर्स अवेलेबल है कंपनी की तरफ से लोगों को ट्रेन करने का, दैट हैज़ टू बी यूटिलाइज परफेक्टली, पूरा अच्छे तरीके से, क्योंकि उससे क्या है कि हमारा आगे का काम काफ़ी आसान हो जाता है. ऑफ कोर्स, यू नो, यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑन योर ओन सेल्फ, बट व्हाटएवर द कंपनी प्रोवाइड्स उसको तो यूटिलाइज करना चाहिए. तो रेगुलरली आई रिमेंबर, यू नो, तानिया इज मेकिंग फ़ोन कॉल्स, मेकिंग श्योर कि लीडर्स को पता है कि ये आर्टिस्टिक का ट्रेनिंग इस दिन है, इस दिन उसका है, न्यूट्रोलाइट का है, और इस तरीके से हम लोगों को प्रमोट करते थे. और फिर क्या करते थे, बीच बीच में वी यूज्ड टू ऑलवेज कंडक्ट हाई एंड ट्रेनिंग सेशंस. मेनी ऑफ द हाई एंड ट्रेनिंग सेशंस में तो हम लोग खुद ही कर लेते थे, but sometimes we used to always also involve the company to do some sort of a training, and they have several modules. उन modules को आप समझ के उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो. That was very, very important. तो उसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट का पार्ट है, सी नंबर्स लेके आना, दैट इज़ द रोल ऑफ द लीडरशिप. उनको ट्रेन करना विद बिट प्रोवाइड सिस्टम, दैट इज़ आवर रोल. बट जो प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग पार्ट है, वहाँ पर जितने ज़्यादा कंपनी के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं आप, उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी, वेरी गुड. तो आपके टीम में आपके बहुत से लोग ऐसे आएंगे, जो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो स्पॉन्सरिंग में मास्टर हैं. तो उन लोगों को हम डिफरेंट तरीके से गाइड करते हैं कि भाई ठीक है, आप लोगों को लेके आइए, पर उनके ग्रुप में जा के हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग ज़्यादा करवाते हैं ताकि लोग जो आ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स में ना वॉल्यूम क्रिएट करें. बट देन यू विल फाइंड सम पीपल इन योर टीम हु आर वेरी गुड एट रिटेलिंग. और ऐसे लोगों का रिटेलिंग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके स्पॉन्सरिंग स्किल्स थोड़े कभी कभी वीक होते हैं. तो उनके स्पॉन्सरिंग जहाँ पर कमी पड़ी है, वहाँ पर हम जाके भी मेक श्योर कि जितने भी उनके प्रोडक्ट के यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स में कन्वर्ट हो और उनके रेफरेंसेस लेके उनको नेटवर्किंग करना सिखाते हैं. तो आई थिंक एज अ डायमंड, व्हाइल यू गोइंग फॉर योर डायमंडशिप, मेक श्योर कि आपके टीम में प्रॉपर मेंटरिंग जो हो आपको देना बहुत ज़रूरी है. जो लोगों की स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स को आपको यू हैव टू इंकरेज देम
एंड यू हैव टू अप्रिशिएट दैम, और जो उनके वीकनेसेस है उनको थोड़ा सा आप धीमे से प्यार से उनको यू कवर दोज ब्लाइंड स्पॉट्स एंड मेक श्योर कि आप उनको वहाँ गाइड कर रहे हैं. Nothing. It's very important to be the product of your product. Yeah. And what product we have? First, we have Nutrilite, we have artistry, and we have books and tapes. Yes. So 4 things. So should we? We have to be a product of these 4 products. Well, your language should reflect the language of a Brit leader. कि लगे कि आप जो बात कर रहे हो, आपका एटीट्यूड है, it is reflecting that of all the डायमंड्स Brit प्रोवाइड सिस्टम. और आपका जो लैंग्वेज है, वर्ड्स है, वो वही वर्ड्स मैच कर रहे हैं जो वो सीडीज़ में टेप्स में सुनते हैं. साथ साथ आपका जो कपड़े पहनने का ढंग है, इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट ऑफ द ब्रिट लीडर्स. ये नहीं कि मतलब आपके जो ब्रिट लीडर्स जो हैं सीडीज़ में इतने स्मार्ट और हैंडसम दिखते हैं, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, और आप जहाँ भी जा रहे हो एकदम मतलब एक ऐसा ड्रेस पहन के जा रहे हो जो बिल्कुल क्रश्ड है, या एकदम मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनी ड्रेसेस बिकॉज नेशनल ड्रेस जो भी है हमारे लिए अच्छी है, लेकिन नेशनल ड्रेस का काम जो है वो ऐसे फंक्शंस में है जहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन अगर बिजनेस मीटिंग्स हैं तो वहाँ पर एक एटलीस्ट बिजनेस स्मार्ट कैजुअल पहन के जाएंगे तो इट इज़ ऑलवेज बेटर. आर्टिस्ट्री जो है लोगों को लगना चाहिए आपको देख के कि आप आर्टिस्ट्री यूज़ कर रहे हो. ये नहीं कि आप वहाँ लोगों को बता रहे हो आर्टिस्ट्री और लोग आपको बोल रहे हैं अपनी स्किन तो देखो. आप न्यूट्रलाइट अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो एटलीस्ट योर टमी शुड बी इन, यू शुड वॉक स्ट्रेट. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ढीलम डाल, मतलब यू शुड बी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, यू शुड लुक प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड पीपल इन योर टीम शुड पे यू द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बाय सेइंग कि आई वांट टू लुक लाइक यू एंड आई वांट टू बी लाइक यू, समथिंग लाइक दैट. That is very important. And you see, when you go diamond, you should be more and more, your health should be more and more improving. You're not supposed to killing yourself. Yeah, very true. Very true. Because it's like you growing, your business is growing, so you have to maintain your health. You have to maintain your health. That is most priority, because if your health is fine, you can do more meetings, your ability of performance increase dramatically. Yes. And I feel like after becoming a diamond, I mean, we feel greater, we feel greater, we have more energy, we have more energy and we feel excited. And we feel like doing more also, Yeah. And when we were going for our diamond campaign, our typical हमारा जो रूटीन था दिन का, वो ऐसा लगता था कि मतलब हम सुबह उठते थे and always we used to try to get up half an hour earlier than a normal time. और उसके बाद हम लोग जो थे थोड़ा बहुत light, if you are taking a morning walk, that's fine. A bit of stretching, कुछ टाइम ये तो सूर्य नमस्कार कर लिया, उसके बाद when you eat healthy, you make sure that you have some nice light porridge, some light breakfast full of nutrition. अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो मतलब आप कम से कम पॉजिटिव तो लो, मतलब ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है. साथ साथ वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ CD प्लेइंग, ताकि सुबह सुबह शुरुआत हो तो किसी पॉजिटिव चीज़ को सुन के हो. ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ डायमंडशिप मतलब अखबार का तो कोई काम ही नहीं था हमारे घर में. अगर न्यूज़ चेक करनी है तो वी चेक इट ऑन द इंटरनेट. आई एम नॉट सेइंग द न्यूज़पेपर्स आर ऑल बैड, बट दैट टाइम हम लोग नहीं देख रहे थे. और साथ साथ उसके बाद हम लोगों का फिर अपना बैठ के हम लोग अपना डायरी में देखते थे कि आज क्या क्या करना है. लिस्ट तैयार हो जाती थी कि आज किन को मिलना है और क्या चीज़ें करनी है. टू डू लिस्ट एंड टू मीट लिस्ट, उन दोनों लिस्ट को लेकर फिर हम लोगों की फ़ोन कॉल चालू होती थी. मैं थोड़ा ईमेल वगैरह चेक करता था मॉर्निंग में, और ऐसे करते 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 हमारा बाय द टाइम 10 o'clock 11 o'clock होता था. वी वर रेडी टू गेट आउट ऑफ द हाउस. और उसके बाद हमारी मीटिंग चालू हो जाती थी, और मीटिंग्स के बीच में कभी कभी टाइम मिलता था, उसमें हम लोग कुछ लीडर्स से मिलते थे, कुछ काउंसलिंग हो जाती थी, और बीच में फ्री टाइम मिलता था जहाँ पर भी. उस फ्री टाइम में हम लोग जो थे वी यूज्ड टू इधर हम लोग अपना आपस में थोड़ा बहुत रिलैक्स करते थे, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल ही मरे जा रहे हैं मतलब डायमंड जाने में. यू हैव टू मेक इट लुक ईजी टू द पीपल. लोगों को ऐसा दिखाना है कि डायमंडशिप जो है कोई खास बड़ी बात नहीं है लेकिन तैयार रहते थे हमेशा कि अगर कोई आदमी 11 बजे भी टाइम देता है तो हम 11 बजे भी मिलने को तैयार थे. गलती लोग कभी कभी क्या करते हैं कि टाइम मांगते हैं लोगों से. आपने डेप्थ में किसी को कॉल किया, आपने टाइम मांगा कि मेरे को 7 o'clock पे अपॉइंटमेंट चाहिए, 8 बजे अपॉइंटमेंट चाहिए, 9 बजे अपॉइंटमेंट चाहिए. लेकिन कभी कभी मैंने क्या देखा है कि अगर आप वाकई लोगों से नए लोगों को आप फ़ोन कॉल करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, अगर आप वाकई लोगों को बोलो कि मैं 10 बजे मिल सकता हूँ, आपको 11 बजे मिल सकता हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, तो मेनी टाइम्स आई हैव सीन
कि लोग आपको 10-11 बजे मिलने को हाँ बोल देते हैं, लेकिन अगर आप पूछोगे ही नहीं 10-11 बजे, एंड इफ़ यू मेक इट लुक यू आर ओनली अवेलेबल बिटवीन 7 to 10 इन द इवनिंग या ड्यूरिंग कन्वीनियंट आवर्स, तो क्या होगा कि लोग कभी कभी आपको ऐसे ऑड आवर्स पे टाइम देंगे ही नहीं जब आप वाकई अवेलेबल हो। तो हमने तो क्या किया था कि आपने आपको पूरा खुला छोड़ दिया था कि आप कभी भी हमें अपॉइंटमेंट दे सकते हो, वी आर ऑलवेज रेडी टू टेक अपॉइंटमेंट्स। रात में 11 बजे किसी को प्लान दिखाना है, वी आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। तो ये हमारा टिपिकल शेड्यूल था कि वी आर ऑलवेज बिजी, रात में वी आर ऑलवेज लेट इन स्लीपिंग, और आने के बाद भी हम लोग काफ़ी कुछ आपस में नोट्स एक्सचेंज करते थे। अकाउंटिंग भी देखनी होती थी कि भाई कहीं पर प्रोडक्ट्स गए हैं, क्या है सिस्टम, दिस दैट, यू नो। ऑलवेज हम लोगों के पास गाड़ी में कुछ स्टॉक पड़ा रहता था प्रोडक्ट्स का, एंड दो स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑलवेज दोज कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स जो लोगों को ज़रूरत होती थी। तो कभी कभी क्या होता था कि कोई चीज़ किसी को चाहिए तो फट से ला के दे दी उसको उसी वक्त हाथ के हाथ। टेप्स किसी को चाहिए, फटाफट सीडी निकाली, उसको हाथ के हाथ दे दी। उसमें क्या होता था कि जो चीज़ हाथ में अवेलेबल रहेगी तो लोगों को फटाफट दे देंगे, तो लोग आराम से फटाफट उसको ले भी लेते हैं। And you save time because if you tell, oh, tomorrow I'll give it to you. Yeah, avoid that, you know. Second trip just to give something is bad. Just immediately give something हाथ के हाथ, हाँ जी लीजिए इसको फटाफट। And don't leave everything for the last hour of the month. Yeah. Try to finish your months couple of days before. अगर आप डायमंड जाते हुए अपने जो ग्रोइंग लेग्स हैं उनमें लोगों को सिखा देंगे ये बात कि पीवी होल्ड नहीं करना है, जॉइनिंग्स होल्ड नहीं करनी है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अच्छा मैं 9% इस महीने नहीं पहुंच रहा हूँ तो चलो जितना पीवी होता है 300-400 उतना ही डालता हूँ, ऊपर का पीवी जो है नेक्स्ट मंथ के लिए होल्ड कर दूंगा। दैट इज़ वेरी बैड। अगर कोई 12% जा रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम जो है 1500 पे आ गया है तो उसको 1500 बोलो कि आप डालो 1500 पूरा का पूरा। क्यों? बिकॉज जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस जो है नेक्स्ट मंथ और बढ़ेगा। अगर आपने वॉल्यूम होल्ड करने का थोड़ा सा भी हिंट दिया टीम में और उसको प्रमोट कर दिया या लोगों ने उसको करना शुरू कर दिया और आपने उनको मना नहीं किया, तो एक पॉइंट के बाद जाके उस लेग में क्या होगा कि वॉल्यूम कितना आ रहा है पता ही नहीं लगेगा, और लास्ट डे पे जाके सडनली यू विल बी स्क्रैम्बलिंग फॉर वॉल्यूम कि कहाँ इतना वॉल्यूम है, कहाँ है, एंड यू बी फाइंडिंग पीपल होल्डिंग 200-300 पीवी हेयर देयर, यहाँ वहाँ, और बहुत मुसीबत आती है। तो हम लोग यही कोशिश करते थे कि पूरे टीम में कि 50% वॉल्यूम जो है 15 तारीख तक आ जाए, 25% रिमेनिंग वॉल्यूम जो है वो लास्ट 3rd वीक में आ जाए, ताकि लास्ट 4th वीक में आपका काम जो है सिर्फ 25% लास्ट 2500 पीवी जो भी है या 3000 पीवी है उतना ही काम लास्ट के 1 हफ्ते में बाकी रहे। ये कोशिश करिए, लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे तो लोग ये सीख सकते हैं।